Okay. Next question. Rajaram, Tukaram, and Sakharam were in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Means इनका PSR कितना है? 3:2:1. On 31st March 2019, their balance sheet was as under: liability side, capital account, Rajaram, Tukaram, and Sakharam. General reserve, loan from Bank of India secured, bills payable, sundry creditors. In asset side, cash at bank, sundry assets, drawings, Rajaram, Tukaram, and Sakharam. Additional information: rupees 10,000 has to be provided for realization expenses. The following net realization were made: first realization on 15th April, second realization on 30th April, next realization on 10th May, and last realization is on 19th May. The actual realization expenses were rupees 12,500. See this? Rupees 10,000 has to be provided for realization expenses. But actual में realization expenses कितना हुआ है? 12,200. तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में 10,000 माइनस करेंगे, फिर बाद में 2,500 अगेन. Yeah. Prepare the statement showing distribution of cash by applying excess capital method. Okay. Okay, two statements prepare karne. First one is excess capital method, statement of excess capital, and second one is distribution of cash. Okay. See, in this question, we have general reserve, we have drawings. See, जनरल रिजर्व भी है, ड्राइंग्स भी है, तो अपना एडजस्टेड कैपिटल कैसा हो जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल बैलेंसेस प्लस जनरल रिजर्व माइनस ड्राइंग्स. ओके, याद आया फॉर्मेट? Okay, let's start with the solution. Statement of excess capital. 5 column, first column for steps, next column for particulars, then next 3 column for partners. Okay, Rajaram, Tukaram, and Sakharam. Okay, step number 1 is adjusted capital. In adjusted capital, we have capital account, general reserve, and drawings. So, first is capital balances. Okay, capital balances how much? 1,22,000. Sorry, 1,22,500. Next is 52,500, and Sakharam ka 25,000. 25,000. Oh, yes. The next is add general reserve. How much? 30,000. Okay. अभी ये जनरल रिजर्व कौन से बेसिस पे जाएगा? PSR. उनके PSR पे, हाँ yes, उनके PSR पे डिस्ट्रीब्यूट. 30,000 distributed at the ratio of 3:2:1. 3:2:1. Okay. 30,000 divided by 6 into 3. How much? 80, ma'am. 15,000. 10,000.
and 5,000. 5. Correct? Yes, ma'am. 3 plus 2 is 5 plus, yes, correct. Then less drawings. See, asset side में drawings given है, capital account, फिर जनरल रिजर्व लिया हमने, ऐड किया, लेस ड्राइंग्स. ठीक है, राजाराम 25,000, 25,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली. ओके, माइनस करना है तो 25,000, then next 25,000, Sakaram 25,000. ओके, देन जो अमाउंट आएगा उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल या फिर नेट कैपिटल बैलेंसेस. ओके, एडजस्टेड कैपिटल और नेट कैपिटल बैलेंसेस. नेट कैपिटल. ओके, देन 1,22,500 plus 15,000 minus 25,000 is equal to 1,12,500. 1,12,500. Next, 52,500 plus 10,000 minus 25,000. 37,500. 25,000 plus 5,000 minus 25,000 is equal to 5,000. 5,000. Okay. Then step number 2, PSR, profit sharing ratio. Question में given है PSR. See, 3:2:1. So first 3, 2, 1. The next step is, yes, next step क्या होगा? Unit capital. Unit capital, correct. Good. Unit capital is equal to adjusted capital divided by PSR. Adjusted capital is 1,12,500 divided by 3. How much? 37,500. 37,500. 37,500. 37,500 divided by 2. See, Tukaram ka 18,750. 1,750. 18,750. Last one is 5,000. 5,000. Next step, Base capital. base capital. 5,000. Whichever is lower. Unit capital is 5,000. Okay, lowest unit capital is 5,000. The step number 5 is proportionate capital. Proportionate capital is equal to base capital into PSR. PSR. Yeah. Karo. 5,000 into 3. 15,000, 10,000, 5,000. 10,000 and 5,000. 5,000. Okay. The next step is interim excess capital. Okay. Interim excess capital is equal to adjusted capital minus proportionate capital. Okay. Step number 1,07,500. adjusted capital is 1,12,500 minus 15,000. 1,07,500. 1,12,500 है minus 15,000 less than 1 lakh होगा. 97,500. Yes, ma'am.
Next is 37,500 minus 10,000 is equal to 27,500 and then here is nil. Okay, Sakaram का nil हो गया. Next is then again PSR. Chapter number 7. Profit sharing ratio. अभी देखो सकाराम का नील हो गया तो उसे हम लोग छोड़ देंगे. राजाराम का 3 एंड तुकाराम का 2. 3:2. देन उसका अभी सकाराम का नील. The next step is again unit capital. Then here unit capital is equal to interim excess capital divided by PSR. Okay, 97,500 divided by 42,500. interim excess capital divided by PSR. 97,500 divided by 3 is equal to 32,500. 27,500 13,750. by 2 is equal to 13,750. Perfect. 750. Yes. Then next हम लोग क्या करेंगे? Step number 9. Base capital. Base capital is equal to 13,750. unit capital. Sorry. Lowest in Lowest unit capital. Okay, lowest unit capital is 13,750. 13,750. 13,750. Okay. Then 13,750. Next is step number 10 is proportionate capital is equal to base capital into PSR. Base capital is 13,750 into 3. क्योंकि राजाराम का 3 रेशियो 41,250. 41,250 में. 41,250. Perfect. The next is 27,500. 27,500. 27,500. Then step number 11 is excess capital. 97 excess capital is equal to interim excess capital minus proportionate capital. Okay, then minus karo 97,500 minus 41,250 is equal to 56,250. 56,250. 250 and here nil. तो अभी now next बारी आती है order of payment की. See, राजाराम का एक्सेस कितना बचा? 56,250. Now order of payment पे first pay to A. first pay to Rajaram rupees 56,250. Then second या next pay to किसको जाएगा? एक लाइन ऊपर वाला देखना है. राजाराम एंड तुकाराम को जाएगा. Second pay to Rajaram and तुकाराम in तुकाराम रुपीस कितना है? 41,250 plus 27,500. How much? दोनों का ऐड करो. 68,750 में. 68,750. 750 rupees. 68,750 in their PSR. Then last pay to All partners. Rajaram to pay to all partners. Okay. Now distribution of cash.
फिर से ऊपर क्वेश्चन में जाते हैं। कौन कौन से लाइबिलिटीज हैं हमारे पास? लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं हमारा प्रॉपर ऑर्डर ऑफ पेमेंट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, देन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन अनसिक्योर्ड, आफ्टर दिस लोन एंड लोन पार्टनर्स लोन, एंड फिर लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल। ओके, आते हैं लाइबिलिटीज ना, प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, देन सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, देन पार्टनर्स लोन, लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल। देन इन दिस क्वेश्चन वी हैव कैपिटल अकाउंट, इनको तो मिलना है, वो भी लास्ट में, ठीक है। उसके लिए हमने एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट बनाया, वहां से हमें पता चल गया कि किस पार्टनर को हमें फर्स्ट पे करना है, देन लास्ट में कैसा, ओके। देन उसके बाद और कौन कौन सी लाइबिलिटीज है? लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, क्या सिक्योर्ड, सिक्योर्ड है मतलब पहले पे ऑफ करना होगा। बिल्स पेएबल, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्रेडिट एंड देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। तो यस, कितने कॉलम्स आ जाएंगे? फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, मैम अनसिक्योर्ड नहीं है ना, सिक्योर्ड है। क्या सिक्योर्ड है? अनसिक्योर्ड नहीं है ना टेबल में। नहीं 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 नहीं, ओनली सिक्योर्ड बैंक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट कॉलम बनेगा, मीन्स जो प्रॉपर हमारे कॉलम्स आते हैं, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे पास जो पहला अमाउंट होगा पहले हम लोग अपना लोन पे ऑफ करेंगे। आफ्टर लोन पेमेंट, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स, देखो सेम कैटेगरी की लाइबिलिटीज है, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स, सेम क्वेश्चन हमने किया था ऐसा टाइप वाला। अभी बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स बोथ आर सेम कैटेगरी, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों के प्रोरेटा बेसिस पे देंगे, मतलब प्रोपोर्शनेटली उनका रेशियो निकाल करके उस रेशियो के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद आया? ओके, देन आफ्टर दिस payment of partners capital. Okay, so let's prepare the format. Payment of distribution of cash. Okay, yeah. Particulars, टोटल कैश, यहाँ पर मैंने कैश एंड क्लेम्स दोनों को ना एक साथ मर्ज कर दिया है, प्लेस भी नहीं था, चलेगा। आप वैसा भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे टोटल कैश भी लिखा तो भी चलेगा। पर्टिकुलर्स, टोटल कैश, देन अपने लाइबिलिटीज, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, सी क्योंकि इन्हें पहले पे करना है क्योंकि ये सिक्योर्ड है, ओके। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, देन 3 पार्टनर्स, राजाराम, तुकाराम एंड Sakaram. Okay, yeah. Okay, first step is opening balances. Yes. बैलेंस शीट में जाएंगे। See, हमारे पास कैश है ये, yes, 25,000 का कैश है। Loan from Bank of India, 45,000, 25,000, 12,500. Okay, cash is 25,000. Loan from Bank of India, 45,000. Bills payable, 25,000, and creditors 12,500. पर चेक कर लेते हैं। या बिल्स पेबल 25, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल, सॉरी हाँ। अभी नाउ हियर यहाँ पर कैपिटल कौन सा आएगा? राजाराम, तुकाराम एंड सखाराम का एडजस्टेड कैपिटल लेंगे या जस्ट कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल लेंगे, कैपिटल मैम। हमने नहीं एडजस्टेड कैपिटल लेंगे क्योंकि देखो रिजर्व भी है एंड ड्राइंग्स भी है, तो एडलेस किया है ना, तो ये वाला जो अमाउंट है ना 1,12,500, 37,500, यस मैम, यस। तो ये वाला अमाउंट हमारा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, एडजस्टेड कैपिटल, ओके।
ओके, देन नेक्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस। हमने बैलेंस शीट से सारे अमाउंट ट्रांसफर कर लिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। Additional information, rupees 10,000 has to be provided for realization expenses. Okay, तो realization expenses लेस करना होगा। 10,000 है, हम लोग देखेंगे हमारे कैश में अवेलेबल बैलेंस कितना है, 25 मीन सफिशिएंट बैलेंस है, तो हम पे कर सकते हैं। लेस Yes, ma'am. realization expenses. Yeah, expenses 10,000. 25,000 minus 10,000, 15,000. 15,000. Yes. Then after this, अभी क्या पेमेंट करना होगा हमें? लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया जो सिक्योर्ड है, तो पहले हम लोग लोन पे कर देते हैं। लोन कितना पे करना है? 45,000, बट वी हैव अमाउंट अवेलेबल ओनली 15,000, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना अमाउंट है पहले Realization कर में देते हैं। यस, सॉरी, फर्स्ट रियलाइजेशन बाद में लेंगे। देखो ना, पहले हमारा जो भी कैश हमारे पास अवेलेबल है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का नील हो जाएगा, तब जाकर के रियलाइजेशन वाला अमाउंट लेंगे। ओके, तो अभी ये 15,000 है और हमें पहला किसको पे करना है? बैंक ऑफ इंडिया का लोन कितना है? 45। तो जितना हमारे पास अवेलेबल है पहले हम उतना पे कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेस पेड टू लोन बैंक ऑफ इंडिया which is secured. Okay, how much? 15,000, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15,000 अमाउंट है। एंड ये 15,000 बिल्स पेपर सॉरी लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया में आएगा 15,000। नाउ अमाउंट अवेलेबल इज नील एंड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया इज 30,000, मतलब 45,000 का लाइबिलिटी था। आउट ऑफ 45, 15,000 पे कर दिया हमने। कितना बचा अभी? 30,000। हमारे पास अभी कैश भी अवेलेबल नहीं है। नाउ बारी आती है फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन how much? On 15th April 2019, first realization is 50,000. 50,000. Yes. 50,000. Now अभी पहले किसको पे करना है? हमारा पहले लोन पे ऑफ होगा, उसके बाद ही हम किसी को पे करेंगे। तो लेस पेड टू लोन ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे कितना पे करना है। देखो 50,000 है बट हमें 30,000, ma'am. 30,000 and here 30,000. Cash available is now 20,000. 20,000. नील. हाँ, तो अभी हमारा लोन तो पे ऑफ हो गया। अब बारी आती है बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स की। दोनों सेम कैटेगरी के लाइबिलिटीज है, तो इनका हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। कितना आएगा इसका रेशियो? 25,000 is to 12,500. ओके, देन इसका रेशियो और छोटा करो उसको, कितना आएगा इसका रेशियो? ठीक है, हम इसको यहाँ लेकर आते हैं वर्किंग नोट। Ma'am, 2:1. 2:1. Okay, see, working note. Okay, bills payable 25,000 and creditors कितना है हमारा? 12,500. इनका अगर रेशियो निकालना है 2:1. payable rupees 25,000 and creditors is rupees 12,500. now इसका रेशियो आ जाएगा, रेशियो is equal to 25,000
is to 12,500 or 250 is to 125 और 2:1. ओके, तो रेशियो मिल गया 2:1. नाउ ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 के रेशियो पे. नेक्स्ट इज लेस पेड टू बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स रेशियो 2:1. चलो 20,000 डिवाइड बाय 3 into 2 into 1 कितना आएगा? मैम 13,333. 13,333 एंड क्रेडिटर्स का 6,667. ओके, देन अमाउंट अवेलेबल इज nil. 25,000 minus 13,333. 11,667, ma'am. 11,667, perfect. And 12,500 minus 6,667. 5,833. ओके, बाकी इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को एज इट इज ट्रांसफर करेंगे. ओके, द नेक्स्ट इज, अभी इन दोनों का टोटल करो. 11,663 एंड 5,833, दोनों का अमाउंट का टोटल कितना है? 17,500. मतलब अभी 500. Yes, ma'am. 17,500 का और रिक्वायरमेंट है. नाउ अभी बारी आती है सेकेंड रियलाइजेशन की. सेकेंड रियलाइजेशन हाउ मच? 10,000. 10,000, मैम. या सेकेंड रियलाइजेशन 10,000. एक मिनट, ये कितना है? दोनों का टोटल 17,500 और हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितना है? ओनली 10,000. तो अब हम क्या करेंगे? जितना अवेलेबल है उतना 10,000 को दे दे. हाँ, उनके रेशियो पे. तो लेस पेड टू बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स 2:1 के रेशियो पे 10,000 माइनस करेंगे और इनका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करो. 10,000 6,667. 6,667 और here 3,333. नाउ माइनस करेंगे, ये हो जाएगा nil. 11,667 minus 6,667 is equal to 5,000. 5,000. correct. 5,000 और here 2,500. 2,500. मतलब अभी भी हमें कितना जरूरत है? 7,500 का. नेक्स्ट बारी आती है थर्ड रियलाइजेशन की. थर्ड रियलाइजेशन हाउ मच? 67,500. 67,500. नाउ नेक्स्ट, पहले हम अपना क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल को पे ऑफ कर दें. लेस पे टू बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स कितना? 7,000. देखो पहले ये ऐड कर लेना है. 5,000 प्लस 2,500 हाउ मच? 7,500. यस, देन यहाँ पर इनका प्रोरेटा बेसिस मतलब 2:1 के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करो. सेम आएगा 5,000 एंड Yes, ma'am. 2,500. नाउ अभी हमारा बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स nil. माइनस करो, ये हो जाएगा 60,000 nil और ये अमाउंट एज इट इज ट्रांसफर होगा. ओके, नाउ अभी कुछ बचा है क्या? नहीं, अभी पार्टनर्स को पे ऑफ करने का टाइम आया. ठीक है, तो पार्टनर्स को हाँ, पहला किस पार्टनर को जाएगा? ये पार्टनर. पहले हमें ए को देना है. और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक और चीज था कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹12,500.
बट हमने माइनस कितना किया है 10,000, हमने पहले कितना दे दिया 10,000, बट एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हुआ 12,500 का। 12,500. मतलब अभी 2,500 और पे ऑफ करना बाकी है ना रियलाइजेशन का। तो Yes, यहाँ पर ma'am. हम लिखेंगे लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना पे करेंगे यहाँ पर 2,500, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 और पे किया है। फर्स्ट देखो 2,500 कर दो और यहाँ पर माइनस किया, बैलेंस कितना बचा 57,000। 500. कैश अवेलेबल इज 57,500। नाउ अब पार्टनर्स की बारी आती है। पहले किस पार्टनर को जाएगा, राजा राम को 56,250। तो फर्स्ट पे टू लेस पेड टू राजा राम, हाउ मच 56,250। ये हमें कहां से मिला, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, एंड राजा राम के कॉलम में आ जाएगा 56,250 माइनस करो 57,500 माइनस 56,250 56,250. 1,250 ना 1,12,500 माइनस 56,250 56,250। हाँ, और इधर 37,500 एंड 5,000 एज इट इज आएगा। देन नेक्स्ट बारी क्या आती है, अभी हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है 1,250। देन अब किसको पे करना है, राजाराम एंड तुकाराम को इन द PSR। अमाउंट कितना है 68,750, बट हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है 1,250। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस पेड टू राजाराम एंड तुकाराम in their PSR। उनका PSR क्या है 3:2। ओके 1,250 डिवाइडेड बाय 5 into 3। तो राजा राम को मिल जाएगा 750 एंड तुकाराम को 500। 500. यस, माइनस कर दो। और तुकाराम को कुछ नहीं मिला क्योंकि अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है। 1,250 ये हो जाएगा नील, एंड 56,250 56,500.